Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, housing and clothing. Learning objectives. Houses we live in, roofs and walls, a healthy house and clothes we wear. Look at the pictures given below, complete the sentences given alongside each picture. See, here are two pictures given to you and आपको fill in the blanks complete करने हैं और यहाँ से आप easily बता सकते हैं कि whether this is a पक्का house or a कच्चा house. A house protects us from heat, cold, rain and storm. Whatever the type of house, it should always be kept clean. देखिए house आपको बहुत सारी चीज़ों से protect करते हैं. अब house आपका कैसा भी हो, किसी भी type का हो, it should be clean. Houses we live in. We need a house to live in. Our house protects us from the heat of the sun, the cold, winter, storms, wind and rain. It also protects us from animals, dust and germs. हाउसेस आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. आपको हीट से प्रोटेक्ट करता है, आपको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, स्टॉर्म से, विंटर से, रेन से, इसके अलावा डस्ट, जर्म्स, एनिमल्स, इन सभी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है. व्हाट आर हाउसेस मेड ऑफ? हाउसेस कैन बी पक्का और कच्चा. पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग. दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउसेस. दे आर मेड अप ऑफ वुड, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स एंड स्टील. Wood and glass are used to make doors and windows. Flats and bungalows in cities and towns are pakka houses. See, आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए होंगे दैट हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, पक्का और कच्चा. पक्का हाउसेज आपके स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं या आपके परमानेंट हाउसेज होते हैं. ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिसकी वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एंड जनरली आपको मिलते हैं ये सिटीज़ में या फिर टाउन्स में. कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ wood, mud, straw and dry leaves. Such houses are not very strong. They are mostly found in villages. A hut is a kacha house. कच्चा हाउस आपके ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं एंड ये आपके मोस्टली विलेजेस में पाए जाते हैं. जैसे कि हट अगर आप एग्जाम्पल लें तो हट आपका एक्चुअली इज अ कच्चा हाउस. Some people such as soldiers and nomads do not stay in one place for a long time. They stay in houses that can be easily moved from one place to another. Such houses are called temporary houses, for example tents and caravans. अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि सोल्जर्स होते हैं, वो एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं. एंड नोमैड्स का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो ये क्या करते हैं? क्योंकि एक जगह पे नहीं रहते तो इनको ऐसी घर की ज़रूरत होती है कि जिसको ईजिली मूव किया जा सके वन प्लेस टू अनदर. तो ऐसे हाउस होते हैं आपके जैसे कि टेंट या कैरावन की हम बात करें तो ये हाउसेस आपके टेम्प्रेरी होते हैं. Tents are made up of a strong cloth known as canvas. A tent can be folded, packed up and carried easily from place to place. Caravans have wheels and can move people and their belongings from one place to another. टेंट आपके जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोथ जैसे कि बोलते हैं कैनवस, उससे बना होता है. टेंट को हम फोल्ड कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, राइट. एंड कैरावन की अगर हम बात करें तो उसमें तो व्हील्स होते हैं तो उसे तो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. A houseboat is a floating house made of wood. It floats on lakes. Houseboat के बारे में भी आपने सुना होगा. Houseboat एक्चुअल में जैसे आपको एक ये floating house होता है जो wood से बना होता है and floats on lakes. Some places are very cold. They are covered with snow all through the year. Houses made of blocks of ice called igloos are found here. कुछ जगह जो बहुत ठंडी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पे लोग रहते हैं इग्लूज में. इग्लूज आपके बर्फ से बने हुए घर होते हैं. Roofs and walls. Houses have a roof and walls to keep away the rain, sun, wind and cold. In some places it rains a lot. Houses here have sloping roofs. Rainwater can easily flow down a sloping roof so water does not get collected on the roof. Houses in places with heavy rainfall are built on the wooden poles called stilts. A stilt keeps the house away from rainwater that gets collected on the ground. अब देखिए रूफ्स भी ना डिफरेंट होती है, डिफरेंट हाउसेस की रूफ्स भी डिफरेंट होती हैं. अगर आप हिली एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राइट, तो वहाँ पे जो घर होते हैं वो स्लोपिंग रूफ के होते हैं. वाई? क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश आएगी या स्नो होगा तो वो ईजिली स्लाइड डाउन हो जाएगा. इसी तरह से जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे घर बनते हैं वुडन पोल्स के ऊपर, जिनको बोलते हैं स्टिल्ट हाउस. अगर आप इसे ध्यान से देखें, आपके वुडन पोल्स होते हैं और उसके ऊपर घर बनाया जाता है. इससे क्या होता है कि जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में कलेक्ट नहीं हो पाता है. In very hot and dry places, houses have thick walls. Such walls keep the house cool in summers and warm in winters. Houses here have flat roofs as there is very little rainfall in these places. अगर हम बहुत गर्म और ड्राई प्लेसेस की बात करें तो उनकी वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं और इन थिक वॉल्स की वजह से क्या होता है कि समर्स में वो घर कूल रहते हैं एंड विंटर्स में वो घर वार्म रहते हैं. A healthy house. It is important to live in a clean and healthy house and surrounding. A healthy house has airy or well ventilated
and well-lit room, veranda, balconies and terrace that provides open space, fresh air and sunlight. Wire-netted doors and windows to keep away disease-causing pests such as flies and mosquitoes from the house. देखिए, एक क्लीन और हेल्दी हाउस में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आपके एक हेल्दी हाउस वही होता है जहाँ पे वो एयरी हो, वेल वेंटिलेटेड हो और वेल लिट रूम्स हो, यानी वहाँ पे लाइट जो है वो प्रॉपर हो. इसी तरह से आपकी जो वरांडाज हैं, बैल्कनीज हैं या टेरेस हैं, ये आपको क्या करते हैं, ओपन स्पेस प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर एंड सनलाइट. डोर्स एंड विंडोज़ में वायर नेटिंग होनी चाहिए जिससे कि आपके जो फ्लाइज एंड मस्कीटोज हैं वो दूर रहे. अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी आउट डर्टी वाटर फ्रॉम द बाथरूम एंड किचन फार अवे फ्रॉम द हाउस. एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आपका घर का जितना भी डर्टी वाटर है, बाथरूम का जितना भी डर्टी वाटर है वो जाए एंड किचन घर से आपका थोड़ा सा दूर हो. फैक्ट फाइल, अ हाउस दैट लेट्स इन इनफ सनलाइट हेल्प्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा घर जिसमें सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है. To keep the house healthy and clean, furniture, doors and windows need to be cleaned every day. Floors need to be swept properly and mopped with clean water. Garbage should be thrown in dustbins. Wash basins, bathrooms and toilets must be cleaned twice a week. घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या होना चाहिए, आपके जो फर्नीचर हैं या डोर्स विंडोज़ हैं उनको हर दिन साफ़ करना चाहिए. फ्लोर्स को स्वीप करना चाहिए प्रॉपर्ली और साफ़ पानी से मॉप करना चाहिए. गार्बेज को हमेशा ही डस्टबिन में फेंकना है. एंड आपके जो वॉश बेसिन्स हैं या बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, इनको हफ्ते में 2 बार साफ़ करना चाहिए. Clothes we wear. Clothes are one of our basic needs. Clothes protect us from heat, cold, rain and dust. What are clothes made of? Clothes are made of different fabrics such as cotton, wool, silk and nylon. A fabric is a material made of natural or artificial fibers woven together. Cotton, wool and silk are natural fibers. We get these from plants and animals. देखिए, क्लोथ्स भी हमारे बेसिक नीड्स हैं क्योंकि क्लोथ भी हमें हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं. अब आपके क्लोथ बने हुए किससे होते हैं? बहुत सारे फैब्रिक्स हैं जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, नायलॉन, इन सभी चीज़ों से बने हुए होते हैं आपके क्लोथ. अब फैब्रिक जो है आपका या तो नेचुरल भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स भी हो सकता है. अब जैसे कि आपके देखिए कॉटन, वूल एंड सिल्क, ये आपके क्या है, ये आपके नेचुरल फाइबर्स हैं. इसका मतलब ये हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिले हैं. नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स. आपके जो नायलॉन एंड पॉलिस्टर हैं ये आपके क्या है, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड फाइबर्स. डिफरेंट सीजन्स, different clothes. We wear light cotton clothes in summer. Such clothes keep us cool and comfortable in hot weather. In winter, we wear thick woolen clothes. They keep us warm. It rains a lot in the rainy season. We wear raincoats and carry umbrellas whenever we need to go out in the rain. These help us to stay dry. अब देखिए, डिफरेंट सीजन होगा तो हमारे कपड़े भी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, समर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना. एंड कॉटन क्लोथ्स हमें क्या करते हैं, कूल रखते हैं एंड हम कंफर्टेबल भी फील करते हैं. इसी तरह से विंटर्स में हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म. एंड रेनी सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं या फिर रेनकोट्स कैरी करते हैं ताकि हम बारिश में वेट ना हो. Summary: our house protects us from the heat of the sun, the cold, winter, storms, wind, rain, animals, dust and germs. Pakka houses are made up of wood, bricks, cement, iron rods and steel. Kacha houses are made up of wood, mud, straw and dry leaves. Tents, caravans, houseboats and igloos are different types of houses. A healthy house is a well-lit, airy and clean. हम सभी को हाउस की ज़रूरत होती है बिकॉज हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से, लाइक सन है, आपका कोल्ड है, स्टॉर्म, विंड, रेन एक्सेट्रा. आपके 2 तरह के हाउसेज होते हैं, पक्का हाउस और कच्चा हाउस. इसके अलावा आपके टेंट्स हैं या कैरावन या हाउस बोट, इग्लूज, भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज हैं. हेल्दी हाउसेज आपका वेल लिट होना चाहिए, एयरी एंड क्लीन. Clothes are made of fibers. Cotton, wool and silk are examples of natural fibers. Nylon and polyester are artificial or man-made fibers. Clothes आपके फाइबर्स से बने होते हैं. अब फाइबर्स आपके नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन-मेड. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.